Yes. Am I audible? Okay. So I will continue that same point that is on differential. We'll see their next example on their definite. So indefinite integral is there. So what is that? Yes, if integration of आवाज जातो sir, x raised to minus 3 into 5 raised to 1 by x square into dx is there. So how to get their solution? That is equals to k times into 5 raised to 1 upon x square, then find value of k. Then find value of k. So how to get their value of k? So after solving their integral and comparing with their k times into 5 raised to 1 by x square, so we'll get their value of k. Means to solve their integral. So how to solve that definite integral? So this will solve by using their substitution. Okay. So in this integral, substitute 1 by x square is equals to t is there. So it becomes x raised to minus 2, that is 2. Differentiating on both the sides with respect to x. So what will be there? Minus 2 into x raised to minus 3. And derivative of base with respect to x, it is dx. That is equals to dt. And here in this integral, already there is term of x cube, x raised to minus 3 into dx is there. So what is value of that term? That is equals to dt upon minus 2. So x raised to minus 3 into dx, that is equals to dt upon minus 2 is there. Okay. तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को यहाँ पे इसी इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड आफ्टर दैट यू कंपेयर विद k टाइम्स इनटू 5 रेज़ टू 1 बाय x स्क्वायर. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट देयर वैल्यू ऑफ k. ओके. सो देयर इंटीग्रल बिकम्स x रेज़ टू माइनस 3 dx. इसी टर्म के लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा? dt अपॉन माइनस 2. सो 5 रेज़ टू, what is our substitution? 5 raised to t is there into dt upon minus 2. That is equals to k times into, yes. So need to solve this integral first and compare with k times into 5 raised to 1 by x square. So first step is that to find the solution of integral. So minus half is constant, take it outside, and 5 raised to t dt. So what is their integration? Their integration will be minus 1 by 2 times into 5 raised to t upon log of 5 is there. Upon log of 5. Okay. So it's a solution of integral. Will you say it's a solution of integral? No. Actually, in their definite integral, integrand is nothing but the function of x. So in their solution, yes, there should have the term of x. Minus 1 by 2 times into 5 raised to x, and what is that value of x? It is 1 by x square upon log of 5. So it's a solution of integral. You have to compare this solution with their RHS side. So what is that solution? Their solution is minus 1 by 2 times 5 raised to 1 by x square upon log of 5. That is equals to k times into 5 raised to 1 by x square. So in both these sides, the term of 5 raised to 1 by x square. So after comparing, you will get the value of k. So it is nothing but to find their coefficient of 5 raised to 1 by x square from LHS. So what is there in RHS? Coefficient of 5 raised to 1 by x square is k. तो k किसके साथ आप लोगों को कंपेयर करना है? कोएफिशिएंट ऑफ 5 raised to 1 by x square के साथ. तो minus 1 by 2 into log of 5 is there. So this is also written in the form minus 1 upon log of 5 square is there, that is 25. So minus 1 by log of 25. It's a value of k. It's a value of k. So which is that correct option? So correct option is what? Minus 1 upon log of 25. It's a correct option. Okay.
So this is way to find ब्लॅक कसं होत आहे हे व्हाईट आहे ना हा? It's okay. Yes, got it. Okay. See the next example there on indefinite integral. So integration of 1 upon 1 plus 3 sine square x into dx. So how to solve this integral? So there are two ways to find the solution of integral. One is that express power of sine in terms of multiple angle of cos, and we have their formula. तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कैसे आप लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2. So this was first way. And second way is that to express this whole term in the form of tan. Yes. And how we express their whole term in the form of tan? Yes. Multiplying and dividing throughout this fraction by cos square x. अगर आप इसी फंक्शन को cos square x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आप लोगों को कौन सी टर्म मिलेगी? यस. So see here in this integral, multiply and divide throughout their numerator and denominator by cos square x. So 1 upon cos square x. Yes. So 1 divided by cos square x into 1 plus 3 into sin square x upon cos square x into dx. So that is equal to, you know, here 1 by cos square x dx is what? Sec square x. So 1 by cos square का meaning sec square होते हैं upon. Then you divide that cos square of cos square x to 1 plus 3 sin square x. So 1 by cos square यहाँ पे sec square x मिलेगा. Sec square x plus 3 into sin square x by cos square x. That is 3 into tan square x. 3 into tan square x. Okay. Now again you have to express that sec square x which is in place of denominator in the form of tan square. And how you can express it in the form of tan square? तो आप लोगों के यहाँ फॉर्मूला होता है. कौन सा फॉर्मूला है? sec square x मतलब 1 plus tan square x is there. So sec square x dx upon 1 plus tan square x plus 3 tan square x is there. dx. Okay. So tan square plus tan square. यहाँ पे क्या होता है? Coefficient of tan square x is 1 and here in this coefficient is 3. 3 plus 1 is 4. So that is equals to sec square x into dx upon 1 plus 3 plus 1 it is 4. 4 into tan square x is there. Okay. Now here in this case, you know, if you are substituting there tan x is t, what about the derivative of tan x? It is sec square x. So already there in numerator. Hence we have converted that whole function either in terms of tan square or in terms of tan or in terms of cot. तो एक तो आप ये टाइप का फंक्शन मतलब साइन स्क्वायर की जो टर्म होते हैं आप tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या cot स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So it means that we have three more options. One is that convert power of trigonometrics into multiple angle of trigonometry. तो मल्टीपल में आप एक ऐसे कन्वर्ट करोगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 एक होता है. दूसरा ऑप्शन ये होता है
साइन स्क्वायर एक्स जो है और जो टर्म साइन की होती है आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थ्रू दिस बाय cos square x. So what is that next option? That is third option. So third option is that dividing and multiplying through this by, yes, कैसे? साइन स्क्वायर एक्स से कर सकते हैं. उससे भी आप लोगों को ये क्या होता है, उनका सॉल्यूशन मिलेगा. सो इन दिस इंटीग्रल व्हेन यू सब्स्टिट्यूट देयर tan x is t, अगर आप tan x is equal to t सब्स्टिट्यूट करें तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा रे? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और x का डेरिवेटिव क्या होता है dx, दैट इज इक्वल टू dt. ये आप लोगों को मिलेगा. एंड दिस टर्म इज ऑलरेडी देयर इन इंटीग्रल. ओके, सो their integral becomes integration of sec square x dx is what dt. So dt upon 1 plus क्या होगा रे? 4t square is there. ये टर्म आप लोगों को मिलेगी 1 plus 4t square. And you know their standard formula in integration. So beside their steps, I will state here the result which is suitable to get their solution of integral. That is dt upon, yes, t square plus a square is there. ये फॉर्मूला होता है. तो ये आप कैसे लिखोगे? 1 by a into tan inverse of t upon a is there. Tan inverse of t upon. So 4 is common. So what is that coefficient you want? t square का coefficient 1 होता है. So t square का coefficient यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. So for that you take here 4 as common. तो 4 आप लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना है. So dt upon 4 जो है वो कॉमन लेना. सो 1 by 4 plus t square is 1 by 4 plus t square. So 1 by 4 is constant, take it outside from that integral and you have to write there in standard form, that is dt upon d square plus, sorry, t square plus 1 by 4 means what? 1 by 2 whole square is there. ऐसे आप लोगों को लिखना है. तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऑन दिस सॉल्यूशन व्हाट इज दैट? ए, तो ए का वैल्यू क्या होता है? ए का वैल्यू 1 by 2 होता है. सो 1 अपॉन ए मतलब 1 by 2 into tan inverse of t upon 1 by 2 is there. ओके, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, दैट इज 4, मतलब 2 2 जा 4 इज देयर. सो 1 by 2 times into tan inverse of 2t is there. Okay, tan inverse of 2t. And what is our substitution? Yes, you know that their substitution is t is equal to tan x. मतलब यहाँ पे आप लोगों को tan x सब्स्टिट्यूट करना है. So tan inverse of 2 into tan x is there. 2 into tan x. 2 into tan x. Now one more is that can you cancel the term of tan inverse and then tan? No, because in between them 2 is middle. Am I right? So 2 is in between tan inverse and tan. So we cannot cancel the term of tan inverse or the term of tan inverse, or tan will not vanish. So it's a final या correct solution. Alright ना? So ये सही option होता है in this question. So use it properly and then choose that same. Okay. Okay, see it. Third question is on there. Definite integral, that is primitive of sin x cos x is. Question is that primitive of sin x into cos x is. Primitive का meaning ये होता है, it is nothing but integral. Okay, so this what parallel meaning of their integral. So how to get their solution means to find their integration of sin x cos x is there. So first you have to learn their proper meaning of question. So proper meaning of question is that to find their integration of sin x cos x, right ना? तो आप लोगों को उनका solution find करना है definite. So indefinite integral. So let primitive का meaning integration sin x into cos x dx is there. So you know what is that sin 2 theta? We have there multiple angle. So what is that multiple angle? So 2 sin x into cos x is there. So what is that sin x cos x? It is sin x sin of 2x upon 2. Otherwise, how is possible to find their integration? Can you get their integration?
in separate form? No. So integration of product is not equals to product of their integral. So sin x cos x is और sin 2x upon 2 ये integration होता है sin of 2x upon 2 and there is possible to find the integration of single term. So 1 by 2 is constant, take it outside, and integration of sin is minus cos of 2x upon derivative of angle with respect to x, it is 2. So after multiplying, what term will be there? Cos of minus cos of 2x upon 2 into 2 is 4. So this is what the correct option for this question. Okay. So we have to learn what actual meaning of their question. So meaning of primitive is nothing but integration. Okay. Yes. So the next question, they're on definite integral. Dx upon integration of dx upon 2x minus 7 into root of x square minus 7x plus 12. ये आप लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना. So in this integral you observe in their factor which is outside of root there is what minus 7. यहाँ पे भी minus 7 होता है. उसका रिलेशन क्या होगा? It means that you have to express that polynomial x square minus 7x in the form of 2x minus 7. इसी फॉर्म में आप लोगों को एक्सप्रेस करना है. तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? Will you express there in the form of 2x minus 7 or 2 times into x minus 7 by 2? ऐसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. हो रहा है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है अगर आप ये इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे तो. उसके बाद yes, see here in this integral you have to take there 2 as common because you know here in this we have to express that polynomial in the form of x minus is there. So how to express it? dx upon. तो ये आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? 2 times into x minus 7 by 2 असं असेल लक्षात घ्या. into root of same kind of factor should be there in root. तो रूट में सेम टाइप का फैक्टर आप लोगों को मिलना चाहिए. तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो x माइनस 7 by 2 होल स्क्वायर इज देयर. अगर आप ऐसे लिख रहे थे बराबर. So if you write there in the form x minus 7 by 2 whole square, so what is their expansion? x square मिलता है ना. minus 7 by 2 times minus होता है ना minus 2x into 7 by 2 means what? minus 7x means first two terms are there from that expansion. What about their next? plus 49 by 4. ये टर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा होती है. तो माइनस क्या होना? 49 by 4 इज. अगर एक्स्ट्रा टर्म 49 by 4 होती है तो सबट्रैक्ट करना. plus 12 is there. Right? And after adding all these, you will get there x square minus 7x plus 12 is there. Alright? So x square minus 7 by 2 into 2x मतलब 2 कैंसिल होगा, minus 7x मिलेगा plus 49 by 4. तो यहाँ पे सबट्रैक्शन लेना जरूरी है. तो ये इक्वेशंस बैलेंस हो सकता है. So integration of dx upon 2 times into x minus 7 by 2 into root of क्या होगा? देखो root of x minus 7 by 2 whole square और minus 49 by 4 plus 12. What is sum of them? 4 into 12 that is 48 and minus 49 it is minus 1 by 4. ये minus 1 by 4 ऐसे लिखना है आप लोग. And this is what the yes perfect formula. So we have got their perfect formula. Yes. So 1 by 2 is constant, take it outside into integration of dx upon. ये आप लोग कैसे लिखोगे? dx upon x minus 7 by 2 into root of x minus 7 by 2 whole square minus 1 by 2 square. ये आप इसी मोड में लिख सकते हैं. अगर आप लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. How you get their solution of integration directly? You know here the result. Beside that steps, I will write or I will set their results. Integration of 1 by x into
root of x square minus 1 into dx. And what is their integration? It is nothing but sec inverse of x is there. तो उसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स ऑफ x होता है. तो x की जगह कौन सी टर्म होती है? x minus 7/2. Either you can use their substitution or you can apply this formula in general form directly. जनरल फॉर्म में ये फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं? देखो, x प्लस माइनस ए इंटू रूट ऑफ x प्लस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1. तो यही फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अगर ये फॉर्मूला ऐसे लिख रहे हैं x माइनस ए इंटू रूट ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इंटू dx, तो आप लोगों को कैसे मिलेगा? दैट इज इक्वल टू, यस, अदरवाइज यू कैन सब्स्टिट्यूट देयर. अगर ये आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करोगे तो भी चलेगा. देखो, if you are substituting that same, you will get there, yes, you will get their formula of sec inverse of x. Yes, so instead of using this formula, so from which formula you will get their same? Yes, तो यहाँ पे substitution चाहे तो आप लेना 7/2 that is equals to t. मतलब dx आप लोगों को क्या मिलेगा? dt is there. So after simplifying, yes, you will get their integration in t. So dx की वैल्यू dt होती है. So dt upon t into root of t square minus 1/2 whole square is there. ऐसे मिलेगा, आप लोगों को ऐसे मिल सकते हैं. So will you compare this result with their standard result of sec inverse, that is 1/x into root of x square minus 1. But in this case there is what t square minus 1/4 is there. Now try to take their LCM. And what is that LCM? 1/2 times into integration of, yes, dt upon, देखो अगर आप सिंप्लीफाई करने जा रहे तो क्या मिलेगा? t इंटू रूट ऑफ, इनका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 1/4. देयर एलसीएम इज व्हाट? 4t स्क्वायर minus 1 upon 4 is there. And take root of every term in there. Yes, function of 4t square minus 1 upon 4 is there. So what is their term? 1 upon 2 times into integration of dt upon, yes, क्या मिलेगा? देखो, root of 4, it is 2, that will shift to numerator. So 2 dt upon t into root of, ये टर्म आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? 2t होल स्क्वायर माइनस 1. अगर यहाँ पे 2t होल स्क्वायर माइनस 1 होता है तो आउटसाइड में भी क्या होना चाहिए? 2t होना चाहिए. सो आई जेट द टर्म ऑफ 2 हियर. सो दिस इंटीग्रल बिकम्स एज, ये जो 2 है, that 2 take outside into dt, yes, upon this term of 2 right there inside as 2t into, yes, root of 2t square minus 1. तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, 1 upon x into root of x square minus 1. तो यहाँ पे क्या होगा? 2t into root of 2t square minus 1 is there. So in this case 2x as a scalar multiple, so it will not affect on their formula. So what will be there? That is equals to, ये आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? That is equals to 2 into, yes, sec inverse of 2t is there. Sec inverse of 2t plus c is the solution. But will you say it's a correct solution? No. In their given integral there is function of x. So in their solution there should have function of x. So 2 into sec inverse of 2 into t की वैल्यू क्या होती है रे? t की वैल्यू x minus 7/2 होता है. देखो, x minus 7/2, yes, plus c. And after simplifying, so what term will be there? That is 2 into sec inverse of 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या मिलेगा? 2x माइनस, क्या होगा? 2x माइनस, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, तो 2x माइनस 7 प्लस c, एंड दिस इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन. ये करेक्ट ऑप्शन होता है. 2 into sec inverse of 2x minus 1. तो ये आप लोगों को कैसे मिला? 2 से मल्टीप्लाई करना. So 2 into x it is 2x, and 2 into minus 7/2 means 2 will cancel. Get there minus 7 only plus c. It's a solution. Okay? तो ये solution या करेक्ट ऑप्शन होता है. See the next example. They're on indefinite integral.
yes, integration of x plus 3 into fifth one is there, integration of x plus 3 into x square plus 6x plus 10 raised to 9 into dx. You seems to be that problem is lengthy. No, it's simple. What is that direction you are applying, that is most important. Okay, so in this case if you are expanding their process will lengthy. अगर ये आप expansion लेने जा रहे हैं तो expansion देखो रेस्ट टू 9 है, मतलब यहाँ पे आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 10 टर्म्स, और 10 और यहाँ पे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10 दैट इज 20 मोर टर्म्स विल बी देयर एंड दैट जॉब इज लेंदी. ये जॉब लेंदी होता है देखो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो इसी जगह क्या करना, सिंपल ट्रिक यूज करना. तो सिंपल ट्रिक कौन सी होती है देखो, x plus 3 keep as it is and will you express that whole term in the form of x plus 3. ये जो whole term है x plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. कैसे आप लिखोगे, या one more is there, you keep that function as it is, x square plus 6x plus 10 raised to 9 is there, but what I am getting there, x plus 3 from that x square plus 6x. How? So if you are substituting there x square plus 6x plus 10 that is equals to t, ऐसे सब्स्टिट्यूशन ले रहे. तो डेरिवेटिव लेना दोनों तरफ. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और x का डेरिवेटिव dx होता है. यस, 6 और x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx होता है. दैट इज इक्वल्स टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो उन दोनों में से आप कौन सी टर्म कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं. सो 2 into x plus 3 into dx that is equals to dt. ये टर्म मिलता है. So are you getting that same term where there is an integral? So x plus 3 into dx मिल रहा है ना. तो x plus 3 into dx that is equals to क्या मिलेगा आप लोगों को, dt upon 2 मिलेगा. ये क्या होता है, dt upon 2 होता है. तो इसी इंटीग्रल में आप कैसे कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो x square plus 6x plus 10 because their derivative is already there in integration, so x plus 3 into dx is there, बराबर है ना. तो x plus 3 dx की वैल्यू आप लोगों को कौन सी मिली है, dt upon 2. तो x square plus 6x plus 10 का है, तो t raised to 9 होता है, ये t raised to 9, और x plus 3 into dx क्या होता है रे, dt upon 2 is there. It's very simple to get there the solution of integral. So integral that is 1 by 2 is constant and integration of index function that is t raised to 10 upon 10 is there, plus c is the solution. So 10 into 2 that is 20. So 1 by 20 into what is that value of t? t का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को रीसब्स्टिट्यूट करना है. So their value of t is x square plus 6x plus 10 raised to क्या होगा, 10 होता है, raised to 10 प्लस सी. तो ये क्या होता है, सही ऑप्शन होता है, ये सही सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग? अदरवाइज फ्रॉम यू साइड हाउ टू गेट देयर सॉल्यूशन, you will expand here and that job is lengthy. At least how many, yes, how much time is expected to get their solution? Yes, there is need of more than 15 or 20 minutes. Instead of that, if you are using their substitution, you will get their solution within half minute. Am I right? Or half hour within 1 minute. Okay. See the next example. They're on indefinite. Sixth one. Integration of, evaluate integration of sin x minus cos x upon sin x plus cos x into dx. So in this case there are two more option to get their solution. यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन ऐसे होता है कि आप रैशनलाइजेशन करना. अगर आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो एटलीस्ट, yes, there are how many steps are required? There are at least, yes, 5 or 6 steps.
So instead of that, within 2 or 3 steps, how to get their solution. अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे sin x plus cos x, तो उनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो सकता है या नहीं, देखो. Okay, use their substitution sin x plus cos x दैट इज इक्वल टू टी. अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव लेना. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है. x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx होता है. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और फिर से x का डेरिवेटिव dx होगा, दैट इज इक्वल टू dt. सो dx इज कॉमन टू बोथ, टेक इट आउटसाइड, हो रहा है ना. तो cos x माइनस साइन x इनटू dx दैट इज इक्वल टू आप लोगों को dt मिलता है. बट if that same term is there in numerator, no. So how to express it? There in the form of sin x minus cos x. So take here minus as common. अगर आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो कौन सी टर्म रहेगी? sin x minus cos x. तो similar term will get if you are taking their negative sign outside of their factor, that is equals to dt. तो sin x minus cos x into dx, उनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस dt is there. So this is value of sin x minus cos x. Okay, so put this value where in this integral. So their integral becomes integration of sin x minus cos x into dx, it is minus dt upon, yes, sin x plus cos x, it is t. Can you get their integration? It's simple, because you know in this integral derivative of t is in numerator, or you know their formula of 1 by t into dt. Their integration is what? Log of t is there. So in this case, so what value is there? Log of t. So log of t means what? Yes, minus log t means what? Log of t raised to minus 1. Log of t raised to minus 1. And log of t raised to minus 1 means log of t is there. Resubstitute their value of t. What is that t? So 1 upon t is sin x plus cos x. sin x plus cos x. ये क्या होता है? करेक्ट या करेक्ट सॉल्यूशन होता है. So you can select that same option here in this kind of question. Okay. So the next problem, they're on indefinite. Find integration of 1 minus x square into log of x dx. So in this kind of integral, can we apply there any substitution? By there any substitution, is there possible to find solution of integral? No, there is not possible. Substitution से इसी टाइप का जो इंटीग्रल है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना मुश्किल होता है. तो अगर इसी टाइप का इंटीग्रल होता है तो इमीडिएटली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल या जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल क्यों अप्लाई करें? बिकॉज one of the function is algebraic, the differential will vanishes at finite instant. Alright. So what is that generalized integration by part? I will state here that same result. So integration of uv. जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल अप्लाई करने से पहले आप लोगों को फंक्शन कौन से सीरीज में एक्सप्रेस करना है? लीएट के सीरीज में. मतलब फंक्शन इसी प्रोडक्ट में कौन से फॉर्म में होना चाहिए? लीएट. लीएट मतलब फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक, नहीं होता है तो इनवर्स, नहीं होगा तो अलजेब्राइक, then trigonometric and exponential, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना. and then you apply the generalized integration by part. Okay, so here in this case we can apply there two more results. मतलब पहला सिंपल रिजल्ट होता है. so I will state here what is that simple result. u into integration of v minus integration of derivative of u into integration of v. ये पहला होता है. ये कब यूज कर सकते हैं? u is not a algebraic function, that is index function. अगर u algebraic या इंडेक्स फंक्शन होता है तो आप सेकंड रिजल्ट यूज करना. u into इंटीग्रेशन ऑफ v इज v1 माइनस u का डेरिवेटिव u डैश होता है, v1 का इंटीग्रेशन v2 होगा प्लस u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश, v2 का इंटीग्रेशन v3 होता है माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस एंड सो. तो इसी फॉर्मूला में कौन सी खासियत होती है? देखो,
u का डेरिव्हेटिव्ह और v का इंटीग्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बरोबर है ना. u का डेरिव्हेटिव्ह इंक्रीज होता है, देखो u डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश. v का इंटीग्रेशन v1 v2 v3 v4, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u and integration of v will go on increasing here in this generalized integration by part. If you are selecting there u as 1 minus x square and v as log x, can you get their solution? No. Before that you have to express this product of function in series of Lie. तो पहला फंक्शन log का होना चाहिए और दूसरा 1 minus x square. क्यों? Because yes, in Liet rule, first function is of logarithmic, then inverse, algebraic, trigonometric and exponential. तो पहला फंक्शन क्या होना चाहिए? लॉगरिथमिक होना चाहिए, बराबर है ना. तो log of x into 1 minus x square into dx ऐसे लिखना जरूरी है. तो ये u होता है और ये क्या होगा? vu. So u is equals to log of x and v is equals to 1 minus x square is there, बराबर है ना. तो अगर आप जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल अप्लाई करोगे, कर सकते हैं. सो लॉग ऑफ एक्स, तो जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या होगा? ये सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा. सो लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है सही है, लेकिन पहला फंक्शन इसी सीरीज में से आप लोगों को कौन सा मिलेगा? लॉग का मिलता है. तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर लॉग इन प्लेस ऑफ फर्स्ट. सो गिव देयर फर्स्ट प्रेफरेंस टू लॉग एंड देन algebraic. And further you proceed by using their integration by part only, not by generalized integration by part. So log of x keep as it is into, yes, into integration of 1 minus x square. तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x होता है. माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 होता है, बराबर है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इज देयर. मैं यहाँ पे d by dx ऑफ log x ऐसे लिखूंगा, बराबर है ना. इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx एंड देयर ऑर्डर dx फॉर आउटर इंटीग्रल. सो इनर इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है, पहले डेरिवेटिव लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करना एंड देन फाइंड देयर इंटीग्रेशन ऑफ दैट रिमेनिंग टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इज देयर. तो x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 कीप एज इट इज इनटू log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है रे? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1 by x, 1 by x होगा. इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus x square, इट इज x minus x cube by 3. यस, इंटीग्रेशन मिला और ये ऑर्डर क्या होती है? dx होती है. दैट इज इक्वल्स टू x minus x cube upon 3 into log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x से मल्टीप्लाई करना इसी फैक्टर को. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1 by x into x, इट इज 1 माइनस 1 by x into माइनस एक्स क्यूब बाय 3, मतलब क्या रहेगा? x स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा. एंड देन टू फाइंड देयर इंटीग्रेशन, यस, सो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इनटू लॉग ऑफ x होता है. देखो माइनस ये टर्म बाकी है, देखो. तो हर टर्म का आप लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या मिलेगा? x मिलेगा. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज ऑट x क्यूब बाय 3, और ये 3 क्या होता है? 9 होता है. क्या मिलेगा आप लोगों को? 9 मिलेगा. सो x स्क्वायर देयर इंटीग्रेशन इज ऑट x क्यूब अपॉन 3, लेकिन यहाँ पे 3 होता है, तो 3 into 3 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे आप लोगों को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना जरूरी है. So x minus x cube by 3 into log of x, effect of minus on this, yes. So this will become minus x or minus minus plus x cube by 9 plus c is there. Okay, and we can express that in proper form. And what is that proper form? X minus x cube by 3 into log x plus x cube by 9 माइनस एक्स प्लस सी. ये क्या होता है? प्रॉपर या करेक्ट ऑप्शन होता है. दिस व्हाट करेक्ट सॉल्यूशन. ये क्या होता है? करेक्ट सॉल्यूशन. यस, तो इन दिस काइंड ऑफ ऑप्शन you have to select that is the correct option for this kind of integral. Okay, so we have studied the number of examples there in indefinite integral.
So another part of their integral is the definite integral. So definite integral means what? Their integral for which value is finite, value is definite. मतलब by which integral you get their value as definite. So this is called definite integral. So definite integral means what? In their integrals, constant limits will be there. So their integral for which limits are constant, such a integral is definite. So definite integral होता है. So let us see here next part of this topic, that is definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है? लिमिट कांस्टेंट होते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी. इट इज डेफिनेट when constant limits are not there, their value is indefinite. Okay, and when limits are constant in their indefinite integral, so it is called definite. Okay, so we'll see their example on definite integral. Evaluate integral from minus pi by 4 to plus pi by 4, 1 upon 1 plus sin x into dx. Now same kind of indefinite integral you have studied. Yes, ये जो 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में होता है तो उनका आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, सो ट्राई टू रिमूव दैट एडिशन टर्म्स और सबसेक्शन टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर. हाउ? बाय यूजिंग देयर रैशनलाइजेशन. तो आप लोगों को यहाँ पे रैशनलाइजेशन लेना जरूरी है. तो आप रैशनलाइजेशन कैसे लेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग थ्रू दिस फ्रैक्शन बाय 1 माइनस साइन एक्स. सो व्हिच इज रैशनल ऑफ देयर फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स? इट इज 1 माइनस साइन एक्स. बराबर है ना? तो रैशनल कौन सा होता है? 1 माइनस साइन एक्स होगा, तो उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. सो लेट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. व्हाट इज दैट रैशनल? 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आप लोग. तो अपॉन 1 प्लस साइन एक्स into 1 minus sin x dx is there. Okay, so that is equals to integral from minus to plus 1 minus sin x keep as it is into dx upon, what is that 1 plus sin into 1 minus sin? That is 1 minus sin square x. And what is that 1 minus sin square x? It is cos square x. Can I write directly? So I will write here one more steps. 1 minus sin square x. And what is that 1 minus sin square x? It is cos square x. So minus pi by 4 to plus pi by 4. 1 minus sin x upon cos square x dx is there. And when you divide or when you remove here the addition as subtraction term from denominator, yes, definitely we can get. So in the place of 1 plus sin x, if you are getting their cos square x by rationalization, process will simple to get their solution. है ना? तो नेक्स्ट क्या करना है? इसी का इंटीग्रेशन करना. तो इंटीग्रेशन करना है तो cos square x से पहले डिवाइड करना, माइनस पाई बाय 4 to plus pi by 4. So when you divide that cos square x to each term of numerator, so 1 by cos square is sec square is there. Minus यहाँ पे क्या होगा? sin x by cos square x minus sin x by cos square x, मतलब tan x into sec x is there. Are you getting everybody? देखो sin x by cos square x मतलब sin by cos, use there one of the term of cos from denominator, sin by cos tan, and 1 by cos is sec, मतलब ये आप कैसे लिखोगे? sec x into tan x dx is there. तो उनका आप इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. So what is their integration of sec square x? Integration of sec square क्या मिलेगा? tan x is there. Minus integration of sec x tan x, it is sec x is there. And
For this term, provide their limits from minus pi by 4 to plus pi by 4. ये लिमिट आप लोगों को अप्लाई. So when you are applying the limit as x tends to pi by 4, तो tan pi by 4 होता है माइनस sec pi by 4. तो x की जगह लोअर लिमिट क्या करना है, माइनस पाई बाय 4 पुट करना है. मतलब tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 माइनस sec ऑफ minus pi by 4. So you know sec is related with cos. So cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है रे? cos pi by 4 की वैल्यू 1 by root 2 होती है. That is 40 pi. Pi by 4 means 40 pi. तो 1 by cos मतलब क्या होगा? sec pi by 4. मतलब रेसिप्रोकल लेना है. Their value is out root 2. तो root 2 मिलेगा. tan pi by 4 it is 1 minus sec pi by 4 it is root 2. ये root 2 मिलेगा. माइनस tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 होता है, तो मतलब tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा इज देयर, राइट ना. tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा इज देयर, राइट ना. सो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 उनकी वैल्यू आप लोगों को चाहिए, तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस tan पाई बाय 4 एंड tan पाई बाय 4 इज व्हाट 1 मींस व्हाट माइनस 1. So one more value you want, sec of minus pi by 4. Sec means what, cos ना, and cos of minus theta is cos theta. तो वैसे यहाँ पे sec of minus pi by 4 is sec pi by 4 and their value is what, root of 2. Okay, so you should know their the value of any trigonometric with their negative angle या positive angle, right ना. तो sec pi by 4 की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे root 2 लिखी है, और tan माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है, माइनस sec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, sec माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू रूट 2 होती है. So after adding them, so what is their value, can you get their value after addition, 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 2 मिलेगा, और ये माइनस 2 है देखो, और ये माइनस माइनस प्लस रूट 2, ये दोनों भी कैंसिल होते हैं. तो सही ऑप्शन या सही सॉल्यूशन कौन सा होता है, 2 इज देयर. So you have to select that correct option here in definite integral. तो ये definite integral इसी वजह से. अगर लिमिट होता है, when limits are constant in their integral, their value will be definite. Okay, so it is called definite integral. It is called definite integral. So here next example there on definite integral. Integral from minus 1 to plus 1. 1 upon a square into e raised to x plus b square into e raised to minus x dx. Now you seems to be that problem is lengthy. No, it's very simple. ये प्रॉब्लम आप लोगों को लेंदी लग रहा है, लेकिन वो सिंपल है. आप ये सिंपल कैसे बना सकते हैं देखिए. अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम सिंपल बनाना है तो कैसे बना सकते, तो कम से कम आप यहाँ पे क्या करना, रैशनलाइजेशन, सॉरी एलसीएम लेना. सो हाउ टू गेट देयर एलसीएम, तो देखो कैसे आप लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1. 1 अपॉन, अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स मींस व्हाट, बी अपॉन ई रेस टू एक्स होता है. तो ए स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन ई रेस टू एक्स होता है इंटू डीएक्स होता है. तो एलसीएम क्या होगा रे, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1, बराबर है ना. एलसीएम लेंगे तो e रेस टू x इंटू e रेस टू x e रेस टू 2x, तो दैट विल शिफ्ट टू न्यूमरेटर. सो e रेस टू x इंटू dx अपॉन e रेस टू x इंटू e रेस टू x, दैट इज a स्क्वायर इंटू e रेस टू 2x, बराबर है, प्लस b प्लस, so a square e raised to x plus b square is there, you do that correction. So b square ना, so b square is there, so b square upon e raised to x, मतलब यहाँ पे क्या होगा, b square होता है. So a square e raised to 2x plus b square is there. Now how to get the solution of this kind of integral using their substitution. Same type of definite integral you have studied.
but here in indefinite integral you have studied, but in definite integral you have to provide their limits only. तो आप लोगों को खाली यहाँ पे लिमिट्स प्रोवाइड करना अगर उनका आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेना, e रेस टू x इज इक्वल टू आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन दिया है t, तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा इस, हाँ यस, उससे पहले उनका स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, e रेस टू 2x इज t स्क्वायर, e रेस टू 2x इज t स्क्वायर। अगर अगर e रेस टू x इज t का आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो आप क्या, आप लोगों को कौन सा डेरिवेटिव मिलेगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव भी इटसेल्फ, फिर से x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx होता है, दैट इज इक्वल टू dt। तो उसके साथ यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट कैसे चेंज होता है देखो, x runs from -1 to +1, हो रहा है ना, ऐसे आप लोगों को मिल रहे हैं। हाँ? तो when you substitute their x is -1, what about their t? t का लिमिट क्या होगा रे, बोलो, x is -1 म्हणजे e रेस टू -1 असेल, म्हणजे e रेस टू -1 इज व्हाट 1 बाय, and then substitute x is 1 मतलब क्या होगा, e होता है, मतलब लिमिट्स विल चेंज फ्रॉम 1 by e to e इन द न्यू इंटीग्रल, न्यू इंटीग्रल में चेंज होता है, हो रहा है ना। तो दिस इंटीग्रल बिकम्स एज 1 by e to e, ये लिमिट न्यू इंटीग्रल का होता है। और e रेस टू x dx की वैल्यू क्या होती है, e रेस टू x dx की वैल्यू dt होती है, सो dt अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर, e रेस टू 2x की वैल्यू क्या होते हैं, 2x की वैल्यू t स्क्वायर होती है प्लस b स्क्वायर। And will you express that fraction in the form of standard formula of integration? Yes. कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? So we want their coefficient as t square. We want their 1 as a coefficient for their t square, but there is not a square. तो यहाँ पे आप लोगों को 1 कोएफिशिएंट मिलना है, तो a स्क्वायर कॉमन लेना। अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे, actual order is with respect to t, means what? The term having t, they are called the variable quantity, and the term which are free from t, they are called constant, and those are constant in their integral, take it outside, बराबर ना। जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको बाहर लेना जरूरी है। सो इंटीग्रल फ्रॉम 1 by e to e, ऐसा से। सो dt अपॉन, इसमें से आप लोगों को a स्क्वायर कॉमन लेना है। अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेने जा रहे हैं तो a स्क्वायर इंटू क्या होगा रे, t स्क्वायर प्लस b square by a square, so we can write the common index for both b square by a square and how b by a whole square is there, ऐसे लिखना। तो 1 by a square is constant, take it outside, 1 by a square जो है वो constant है, बाहर लेना, into integral from 1 by e to e is dt upon, yes, dt upon, कैसे लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस कैसे लेना, b by a होल स्क्वायर, मतलब एक कांस्टेंट टर्म होती है, एंड डू यू नो दैट स्टैंडर्ड फार्मूला 1 by t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dt, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 by a इनटू tan इनवर्स ऑफ t अपॉन e, ये मिलता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग दैट सेम फार्मूला, सो 1 by a स्क्वायर, 1 by a स्क्वायर राइट एज इट इज, and what is that constant b by a, तो कैसे लिखोगे, 1 upon constant b, that is b by into tan inverse of t upon b by a is there, and for this term in place of t substitute their lower limit as 1 by e and upper limit as e, ये करना जरूरी है। सो यहाँ पे e और e कैंसिल होता है, सो there will remain only ab, so 1 upon e into tan inverse of क्या होगा रे, tan इनवर्स ऑफ, ये जो है न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, दैट इज 80 अपॉन बी, और उसके बाद t की जगह लिमिट प्रोवाइड करना है 1 by e टू e, ये लिमिट अप्लाई करना, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 by eb इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड। तो t की जगह आप लोगों को अपर लिमिट लिखना है, सो व्हाट इज दैट अपर लिमिट, t इज इक्वल्स टू e, मतलब tan इनवर्स ऑफ क्या होगा रे, e अपॉन b माइनस एट लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ, लोअर लिमिट क्या होता है रे, t इज 1 by e, मतलब a अपॉन b इज देयर, या e b, a अपॉन b,
तो E अपॉन बी माइनस tan इनवर्स ऑफ A अपॉन बी, ए अपॉन बी। सो ये क्या होता है, सही ऑप्शन होता है या करेक्ट सॉल्यूशन होता है, राइट ना, करेक्ट सॉल्यूशन होता है। And for this kind of terms, there is one more formula. What is that? Tan inverse of A minus tan inverse of B. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan inverse of A minus B upon 1 plus AB. ये सिंगल फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस होगा यहाँ, तो यहाँ का क्या होता है, माइनस प्लस, और ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ये फॉर्मूला है देखो। Yes. So if such a kind of option is not there, you can use this formula. मतलब tan इनवर्स ऑफ कैसे लेंगे आप, tan इनवर्स ऑफ a माइनस प्लस बी अपॉन 1 प्लस माइनस ए, बराबर। तो ये फॉर्मूला मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। सो आई हैव रिटन दैट फॉर्मूला इन कंबाइंड फॉर्म। यस, see the next example. Evaluate integral from -1 to +1. X square plus x x square plus x upon x square plus 1 into dx. So in their mathematics, don't write their terms in separated form. Yes, तो यहाँ पे क्या लिखना है? So if there is necessary to use their bracket, you can apply it or you can use it. So x square plus x upon x square plus 1 is there. Right? So, you know, in this fraction, what about their power? You think over the power of their numerator and denominator polynomial. Am I right? So power of numerator is 2 and power of denominator is also 2. Will you say it is proper fraction? In their proper fraction, degree of polynomial in denominator should be greater than that of numerator. If they are equal, it is improper. And if such a kind of fraction is there in integral, not possible to get their solution. ये पहले ध्यान में रखना। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूमरेटर, नॉट इक्वल्स टू। हमेशा पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होता है, उनकी डिग्री क्या होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर शुड बी बिगर देन दैट ऑफ न्यूमरेटर, बराबर है ना। तो यहाँ पे नहीं है, तो इक्वल है तो क्या करना है, यूजिंग देयर एक्चुअल डिवीजन। एंड व्हाट इज दैट, यस, एक्चुअल डिवीजन। सो एक्चुअल डिवीजन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, यस, हाउ टू एक्सप्रेस देयर इन द फॉर्म, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो पहले आप लोगों को ये चीजें मालूम होना चाहिए, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, बराबर ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा होगा। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करना। आप लोग ये क्यों करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस फ्रैक्शन इज नॉट ए प्रॉपर। जो फ्रैक्शन प्रॉपर होता है वहां क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर इज बिगर देन दैट ऑफ न्यूमरेटर, इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए उनका पार्टीशन लेना, बराबर। कैसे लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लिया, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, बराबर ना। तो उनका सबसेशन लेना, ए माइनस और ए माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होते हैं, बराबर ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दे विल कैंसिल, एंड एक्स माइनस 1 इज देयर, so this will remainder. So once again, will you simplify? No, because their degree of remainder is smaller than that of numerator. If they are equal, you can divide it, alright. So you have to write this fraction in the form of
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो विच इज दैट डिविडेंड? ये डिविडेंड होता है. देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये डिविडेंड होता है. डिवाइजर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन. क्वेश्चन क्या होता है? वन. और रिमाइंडर क्या होती है? एक्स माइनस वन. So how to express there in the form of dividend is equal to divisor cross quotient plus remainder. आपण कसं एक्सप्रेस करू शकतो बघा. लेट इंटिग्रल फ्रॉम -1 टू +1. ये आप कैसे लिखोगे? डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन. ये डिवाइजर क्या होता है? देखो ये डिवाइजर होता है. डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या होता है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या होगा? x माइनस 1 होता है. रिमाइंडर भी क्या होता है? x माइनस 1 इनटू dx इज देयर. एक्चुअली वी हैव देयर सिंगल फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन होता है, लेकिन एक फ्रैक्शन में से आप तीन फ्रैक्शन बना सकते हैं. देखो कैसे? वन होगा, तीन टर्म्स बना सकते हैं. 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये भी आप क्या कर सकते हैं? उनका पार्टीशन निकाल सकते हैं. कैसे? -1 टू +1. 1 प्लस ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हर टर्म को डिवाइड करना. जो टर्म्स न्यूमरेटर में होते हैं इसी फैक्टर में x माइनस 1, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज देयर. -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. If you are evaluating their separation of their fraction, so is there possible to find their integration? Yes, there is possible to find their integration. कैसे आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1. तो हर पार्ट का इंटीग्रेशन आप सेपरेटली ले सकते हैं. 1 इंटू dx. मैं सेपरेट कर रहा हूं तो dx होता है. प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. ऐसे मैं लिखूंगा. आई विल नॉट टेक इट डायरेक्टली. माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. ऐसे मैं लिखूंगा. देखो हर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, और हर इंटीग्रल में लिमिट क्या होता है? सेम होता है. दैट इज फ्रॉम -1 टू +1. तो कॉमन लिमिट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? रे x होता है. चलो x होता है प्लस. तो अगर आप इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. तो एडजस्ट द टर्म ऑफ 2 इन दिस केस. तो यहाँ पे 2, ये 2x होता है क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, इसलिए यहाँ पे 2 की टर्म एडजस्ट किए. Now there in next 1 upon x square plus 1, of course it is derivative integration of tan inverse ना. ये tan inverse और ये log का होता है. So derivative of denominator is in numerator, so their integration will be log of denominator होता है. इतर log of denominator असेल मग plus 1/2 times into log of x square plus 1 होगा. माइनस उनका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है? tan inverse of x. And for this term provide their limits from -1 to +1. ये लिमिट आप लोगों का अप्लाई करना है या प्रोवाइड करना है. तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? अपर लिमिट क्या होता है? x इज 1, मतलब 1 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ क्या होगा बोलो? x की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इट इज 2 मींस log 2 मिलता है. माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. बराबर है ना? माइनस एट लो लिमिट सब्स्टिट्यूट x इज -1. चलो -1 लिखेंगे प्लस 1/2 टाइम्स इंटू लॉग ऑफ. अगर आप x इज -1 सब्स्टिट्यूट किया है तो -1 स्क्वायर इट इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो लॉग ऑफ 2 रहता है. माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 इज देयर. सो tan इनवर्स ऑफ -1 इट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. बराबर है ना? तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? इट इज π/4. बराबर है ना? इट इज π/4. समझ में आ रहे हैं? इट इज π/4. सो -1 प्लस 1 इज देयर. देखो ये सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? 1 प्लस, इसी सॉल्यूशन में देखो हाफ इंटू लॉग ऑफ 2 और ये माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ 2, दे गेट कैंसल. देयर रिमेन माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ मतलब यस माइनस क्या होता है? रे देखो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होती है. मैं यहाँ पे π/4 लिख रहा हूँ. माइनस 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 क्या होता है? +1 होता है. यस. एंड माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ -1. ऐसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? यस tan इनवर्स ऑफ -1. ये आप कैसे लिखोगे? माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब उनकी वैल्यू क्या होती है? -π/4 होती है. तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना.
So 1 plus 1 it is 2. 2 minus pi by 4 और tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या होते हैं माइनस पाई बाय 4 एंड व्हाट इज सम ऑफ देम 2 माइनस पाई बाय 2. तो आप लोग कहेंगे सर पाई बाय 2 कैसे मिलता है? तो माइनस पाई बाय 4 दैट इज माइनस 2 पाई बाय 4. तो 2 get cancelled, they remain minus pi by 2. So 2 minus pi by 2 is the correct option. हाँ करेक्ट ऑप्शन है. तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. तो उससे पहले everyone should have command on their results which are there in integration and differential, also in trigonometric function. बराबर है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर भी आप लोगों का कमांड होना चाहिए. हर जगह आप लोगों का कमांड होना चाहिए. Okay. So the next example, evaluate integral from minus pi by 4 to plus pi by 4. Into sin cube x dx is there. अगर आप इसी फंक्शन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो दो ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन होता है कि यूजिंग देयर थ्योरम ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि express their power of trigonometric function in terms of multiple के फॉर्म में कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. यस ये जो अगर आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं इसी इंटीग्रल का सॉल्यूशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिल सकता है. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व देयर सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल गेट देयर सॉल्यूशन. कैसे मिलेगा? तो बाय थ्योरम ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन. तो वो ऑप्शन में दूसरी बार लें. पहली बार क्या ले रहा हूं, ये जो पावर फंक्शन होता है उसका कन्वर्जन मल्टीपल में कन्वर्ट करना. तो उससे पहले आपके यहाँ फॉर्म्युले होना चाहिए फ्रॉम देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फॉर्म्युले काय असतील बघा. व्हाट आर द फॉर्म्युले इन देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो sin 3x का फॉर्मूला आपके यहाँ होता है. sin 3x का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. हा फॉर्म्युला असेल लक्षात. आपल्याला फॉर्म्युला कोणाचा पाहिजे? सो रिअरेंजिंग द टर्म्स, दॅट इज एक्सचेंजिंग देयर टर्म्स. 4 sin क्यूब x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस sin 3x. बराबर है ना? तो sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या होगा? 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4. ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना. देखो अगर आप वो फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा? लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. साइन क्यूब ऑफ x क्या होता है रे? 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4. ये फॉर्मूला है. देखो ये कन्वर्जन होता है. उसके बाद उनका क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना. So how to get their integration? How to get their integration? So 1 by 4 is constant, take it outside. right? 3 into साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा रे? माइनस कॉस, मतलब माइनस 3 कॉस ऑफ एक्स. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस, मतलब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं cos 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 3. और इसी टर्म में आप लोगों को लिमिट क्या प्रोवाइड करना है? माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. ऐसे लिमिट प्रोवाइड करना है. तो लिमिट प्रोवाइड करना 1 by 4 टाइम्स इंटू माइनस 3 cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 अपॉन 3. माइनस साइड लो लिमिट सब्स्टिट्यूट x इज माइनस पाई बाय 4. सो माइनस 3 इंटू cos ऑफ माइनस पाई बाय 4 ये होता है. प्लस cos ऑफ 3 टाइम्स इंटू माइनस पाई बाय 4 अपॉन क्या मिलेगा? देखो रे 3. cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? देखो cos पाई बाय 4 मैं यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ. cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 by √2 होती है. ओके, वन मोर इज देयर cos ऑफ 3 पाई बाय 4. cos 3 pi by 4 means what? Pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4 lies in which quadrant? In second quadrant. In second quadrant sin only sin is positive, मतलब cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस. और pi minus मतलब pi is nothing but 2 into 90 means
multiple of 90 is even, trigonometric ratio will not change, it is minus cos, क्या मिलेगा आप लोगों को, पाई बाय 4 मिलता है, तो पाई बाय 4 की वैल्यू फिर से 1/√2, तो -1/√2। वन मोर इज देयर, cos ऑफ -3 पाई बाय 4, ये भी है देखो, एंड cos ऑफ -थीटा cos थीटा ना रे, cos 3 पाई बाय 4 इज देयर। तो ये सभी वैल्यूज इसी सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। सो 1/4 टाइम्स इनटू -3, cos 5/4 की वैल्यू क्या होती है रे, 1/√2, प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, -1/√2 होती है देखो, प्लस -1/√2 इंटू 1/3, ऐसे मैं लिखूंगा, माइनस इंसर्ट में क्या होता है -3, cos पाई बाय 4 की, cos ऑफ -थीटा cos थीटा, मतलब cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 मिलेगी, प्लस cos ऑफ -थीटा भी क्या होता है cos थीटा, मतलब इट इज अगेन -1/√2 इंटू 3 इज दैट, ऐसे मिलेगी। तो उन सब के एडिशन आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 1/4 टाइम्स इंटू -3/√2, यस, -3/√2, you write in proper form, plus minus it is -1/3 into √2, minus minus plus 3/√2 is there, and then माइनस और दे, ये भी माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, 3 into √2, तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करना। सो व्हाट इज सम ऑफ ऑल, ए माइनस ए प्लस कैंसिल होता है, ये माइनस और ये प्लस उनके एडिशन 0 होते हैं, व्हाट इज सम ऑफ देम 0, तो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इज 0। यहाँ पे आप लोगों को कितने स्टेप्स मिले, 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेप्स से अच्छा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल गेट देयर सॉल्यूशन, हियर इन दिस एग्जांपल कैसे मिलेगा देखो। तो उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे थ्योरम ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन अप्लाई करना है। देखो थ्योरम ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सेकंड मेथड, कैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, -π/4 टू +π/4, sin क्यूब x into dx. So we have their theorem on even and odd function, and which is that theorem on even and odd function, that is what, -∞ to +∞, f of x dx, and that already also did 2 times into integral from 0 to f of x dx when function is even, when function is even, और फंक्शन इवन मतलब क्या होता है, f of -x is function of x, ये आप लोगों को पहले से मालूम, and what is value of their symmetry, it is 0 when function is odd, ऑड फंक्शन में सिमेट्री कहां पे होती है, इट इज सिमेट्रिकल टू ओरिजिन, तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, थ्योरेटिकली से f of -x is माइनस फंक्शन ऑफ x, आप ऐसे डिफाइन करोगे, बराबर है। तो sin क्यूब x ये जो फंक्शन है ये कौन से टाइप का है आप लोगों को चेक करना है, तो f of x is मैंने कैसे लिखा, sin of x होल क्यूब, मतलब sin क्यूब x। अगर आप लोग यहाँ पे इसी फंक्शन को चेक करना चाहते हैं इवन है या ऑड है, कैसे करोगे, रिप्लेसिंग x बाय -x, x च्या ठिकाणी -x ठेवायचं, म्हणजे इसका होईल sin ऑफ -x होल क्यूब, एंड sin ऑफ -x क्या होता है, बोलो, sin ऑफ -थीटा इज -sin थीटा रेज टू 3, एंड -sin थीटा रेज टू 3 मतलब -1 क्यूब, इट इज -sin x रेज टू 3, आप लोगों को ऐसे मिलेगा, क्योंकि ए बी रेशो एम मतलब -1 रेज टू 3 इट इज -1, एंड sin x रेज टू 3 मतलब ये मिलेगा। सो आर यू गेटिंग दैट सेम फंक्शन, यस, बट देयर फंक्शन इज ऑड, ये फंक्शन ऑड होता है, अगर ये फंक्शन ऑड होता है तो सिमेट्री की वैल्यू 0 होती, तो आप लोग कहेंगे सर लिमिट -∞ टू +∞ होना जरूरी है, नो, सो वॉट एवर दी सिमेट्रिकल लिमिट्स आर देयर, ऑल दीज लिमिट्स विल बी इन जनरल इंटरवल -∞ टू +∞, ये जनरल इंटरवल होता है, देखो -∞ टू +∞, इफ देयर इज सिमेट्री it means that upper and lower limits are same having opposite sign, that is called the symmetry। तो ये सिमेट्री है ना, अगर सिमेट्री है, फंक्शन ऑड होता है तो वैल्यू ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं,
जीरो होते, फंक्शन ऑड होता है तभी। इसलिए मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि इसी टाइप का जो इंटीग्रल होता है उनका सॉल्यूशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी मिल सकता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनका सॉल्यूशन मिला है जीरो, और प्रीवियस सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या मिला है, जीरो मिला है। तो जीरो ये क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है। सो व्हाट इज दैट मेथड यू लाइक, यू कैन अप्लाई इट, बराबर है ना। तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी मेथड में से भी आप लोगों को क्या मिलेगा, फाइनाइट सॉल्यूशन या करेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है, बराबर है। सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम -1 to +1 cos inverse of x dx. You will say in their integral there is limit from -1 to +1, बराबर है। अगर -1 to +1 है तो cos इनवर्स ऑफ x, ये कौन से टाइप का फंक्शन चेक करना चाहते हैं आप, तो कर सकते हैं रिप्लेसिंग x by -x, cos इनवर्स ऑफ -x इज cos इनवर्स ऑफ x, मतलब फंक्शन इवन होता है। अगर फंक्शन इवन होता है तो वैल्यू ऑफ सिमेट्री क्या मिलेगी, 2 टाइम्स मिलेगी। लेकिन आप लोगों को कुछ तो फाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, राइट, फाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। अगर cos इनवर्स ऑफ x dx है तो उनका आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, नहीं। We have their formula for derivative of cos inverse of x, but not their formula for integration of cos inverse of x. उसके लिए फॉर्मूला नहीं। तो इसी का सॉल्यूशन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय अप्लाइंग देयर लिएट रूल, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। कैसे अप्लाई करेंगे, ये लिएट रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो u into v, before that you should arrange their function in series of Lie, मतलब फर्स्ट फंक्शन इज ऑफ लॉगरिथमिक इफ नॉट इनवर्स देन अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो उनका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो u into इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v, ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिएट रूल अप्लाई करें तो लेट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 कैसे लिखोगे, लिएट मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स है, मतलब इनवर्स फंक्शन मैं पहली जगह लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ x, एंड इन प्लेस ऑफ सेकंड देयर विल बी अलजेब्राइक फंक्शन, 1 होता है अलजेब्राइक, इनटू dx। तो u into v रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करोगे, u कीप एज इट इज, मतलब cos इनवर्स ऑफ x, हो रहा है ना, ये लिखना। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या मिलेगा, x मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स, देखो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स क्या रहेगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या मिलेगा, x इज देयर। आउटर इंटीग्रल के लिए क्या मिलेगा, ऑर्डर dx होता है, बराबर है ना। सो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है। तो यहाँ पे लिमिट आप लोगों को कौन सा अप्लाई करना है, -1 to +1, तो फर्स्ट टर्म के लिए लिमिट -1 to +1, और सेकंड टर्म के लिए भी लिमिट क्या होता है, -1 to +1। यू कम इन देयर नेक्स्ट, देखो अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इसी जगह, तो x इज 1 पुट करना, x इज 1 मतलब cos इनवर्स ऑफ 1, एंड cos ऑफ व्हिच एंगल इज 1, 0 ना, cos 0 1 होता है, मतलब यहाँ पे 0 मिलेगा। माइनस एट लो लिमिट सब्स्टिट्यूट x इज -1, cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स ऑफ -1 भी क्या मिलेगा आप लोगों को, cos ऑफ व्हिच एंगल इज -1, पाई ना रे, बराबर ना। cos इनवर्स ऑफ -1 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, cos इनवर्स ऑफ 0, इसकी वैल्यू मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा है ना वो, सो 0 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, एंड cos ऑफ व्हिच एंगल इज cos ऑफ व्हिच एंगल इज 0, तो थीटा इज 0, cos 0 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू आप लोगों को मिली 0, cos इनवर्स ऑफ 0 इज 0। वन मोर इज देयर, cos इनवर्स ऑफ -1 होता है, we can say it is theta, so -1 is cos theta, cos of which angle is -1 pi, -1 is for cos pi, मतलब थीटा की वैल्यू आप लोगों को पाई में, समझ में आ रहे। तो यहाँ पे सेम आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ -1 इट इज pi इनटू x की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to +1 x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, बराबर है ना।
तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस पाई इज देयर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस पाई। समझ में आ रहा है, तो प्लस पाई मिलता है। और दूसरा जो इंटीग्रल आप लोगों को मिला है, इट इज फ्रॉम -1 टू +1 x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सिमेट्री होती है -1 टू +1 है, तो यूजिंग देयर theorem on even and odd function, and when there is odd the value of symmetry is 0 में, मतलब इसी इंटीग्रल का सॉल्यूशन आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिलेगा। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है, अगर जीरो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग दैट सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज t, ये सब्स्टिट्यूशन लेना है आप लोगों को, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन से भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले आप लोगों को फंक्शन चेक करना है, which is type of their function. So f of x is equals to x upon root of 1 minus x square. तो f of माइनस एक्स क्या मिलेगा रे, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर मिलता है। So what is that? Yes, x upon root of 1 minus x square is f of x, मतलब माइनस फंक्शन ऑफ x मिला है। तो f of माइनस एक्स इज माइनस फंक्शन ऑफ x मिलता है, तो फंक्शन ऑफ x क्या मिलेगा, ऑड। एंड व्हेन फंक्शन ऑफ x इज ऑड, वैल्यू ऑफ सिमेट्री क्या मिलती है आप लोगों को, 0। तो वैसे इसी इंटीग्रल में वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो पाई प्लस 0 क्या मिलेगा, पाई। तो सही सॉल्यूशन क्या होता है, पाई होता है। सही सोल्यूशन आपल्याला काय मिळेल, करेक्ट सोल्यूशन पाय मिळतं। यू गॉट इट। सो सी द नेक्स्ट problem there on their definite integral 6(1). Integral from minus pi to plus pi। So root of 25 minus x square into dx। अगर ये इंटीग्रल आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप लोगों को मालूम है सिमेट्री होती है तभी क्या करना, थ्योरम ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन यूज करना। मतलब ये फंक्शन कौन से टाइप का है आप लोगों को चेक करना है। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर मिलते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज रूट ऑफ 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। So that is equals to root of 25 minus x whole square, it is x square. So what is that function? It is same function as that of their original function. So f of minus x is function of x means what, function of x is कौन से टाइप का होता है, even होता है। अगर फंक्शन even होता है तो वैल्यू ऑफ सिमेट्री क्या मिलेगी आप लोगों को, 2 टाइम्स मिलती है। सो 2 टाइम्स इनटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई 0 to 5 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो उतना तो आप लोगों को क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा। मतलब दोनों तरफ आप लोगों को लिमिट प्रोवाइड करना जरूरी है, लेकिन जीरो नॉन जीरो की जगह आप लोगों को जीरो लिमिट मिल रहा है, कौन से, ये कंसेप्ट में से। तो ये आप इंटीग्रल डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। देखो सो 2 इंटू, तो प्रॉपर फॉर्म में पहले क्या करना लिखना। सो रूट ऑफ 25 मतलब क्या होता है रे, 5 स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू dx होता है। तो आपके यहाँ रिजल्ट कौन सा होता है, देखो व्हाट इज दैट रिजल्ट, रिजल्ट स्टेट दैट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, देयर integration is what, root of a square minus x square is what, their x by 2 into root of a square minus x square plus x square a square by 2 into sin inverse of x by sin inverse of x upon a। ये रिजल्ट होता है sin inverse of x upon a। तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना। सो टू अप्लाई दैट सेम रिजल्ट, 2 into x upon 2 into रूट ऑफ 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ए स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 2
इनटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। x बाय ए मतलब क्या होता है रे? x बाय ए, ए की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। और इसी फंक्शन में आप लोगों को लिमिट प्रोवाइड करना है 0 to 5, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट देयर अपर लिमिट, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू 5। लेकिन 5 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 इट इज 0, प्लस 25 अपॉन 2 इंटू, राइट ना, साइन इनवर्स ऑफ x, x इज व्हाट 5, 5 बाय 5 इट इज 1, मतलब 25, 25 बाय 5 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा, माइनस एट लो लिमिट सब्स्टिट्यूट x इज 0, तो 0 इंटू रूट मतलब क्या मिलेगा? 0, प्लस 25 बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, अगर आप x इज 0 पुट करें तो साइन इनवर्स ऑफ 0, राइट? साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पाई बाय 2 होती है, देखो साइन पाई बाय 2 इज 1 हो रहा है, तो पाई बाय 2 इज साइन इनवर्स ऑफ 1, ये वैल्यू आप लोगों को मिलती है, बराबर है? सो दैट इज 2 टाइम्स इनटू 25 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 इट इज पाई बाय 2 मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा? 0, मतलब होल टर्म 0 होती है, तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? यस, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, सो व्हाट इज दैट रिमेनिंग? 25 बाय 2, ये क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन होता है, ये करेक्ट सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है? करेक्ट सॉल्यूशन होता है। ओके, so I have taken here the examples on definite as well as indefinite integrals. Okay, तो देखो, any doubt you can ask or you can share on their WhatsApp group. Yes, I will clear from my side. तो देखो 6 या 7 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट किए पार्ट 2 में से, और पार्ट 1 में से प्रोफेसर गावडे सर विल कंप्लीट, ओके, फ्रॉम मंडे, बरोबर? मंडे पासून तुम्हाला गावडे सर काय करतील? फर्स्ट पार्ट मधले जे टॉपिक्स आहेत ते घेतील, ओके.